السلام علیکم۔ ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 33۔ شاہ زیب پلیز اب مجھے اٹھنے دیں۔ شاہ زیب اپنے پٹھانوں والی خوبصورت انداز سے اپنی اس حسین رات کو یادگار انداز سے سرشار کر چکا تھا۔ اب صبح کی کرنیں پھوٹنے لگی تھیں، مگر ڈاکٹر صاحب ابھی بھی اپنی باہوں کے دائرے میں کیے ہوئے ہما کو اپنے قریب کیے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ گہری نیند میں بھی ڈاکٹر صاحبہ کا پکڑا اتنا مضبوط تھا کہ ہما کے کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکی تھی۔ اٹھ کر کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحبہ، ہمارا ولیمہ رات کو ہے۔ باہوں کے دائرے کو اور بھی تنگ کرتے ہوئے سر اٹھا کر ہلکی سی اسمائل پاس کرتے ہوئے کہا، تو کیا آپ رات تک مجھے اپنی قید سے رہا نہیں کریں گے؟ شاہ زیب کی ساری رات کی خوبصورت قربت کی چمک اس کو شرمانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، اب پوری زندگی میری پناہوں میں سے رہائی ملنا ناممکن ہے۔ آپ کی شدید محبت نے مجھے آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب تو آپ کے ہر ایک لمحے پر صرف اور صرف میرا حق ہوگا۔ پٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا۔ لبوں کے لمس اس کے پورے چہرے پر محبت سے بکھیر رہا تھا، جیسے صبح کی گڈ مارننگ کہہ رہا ہو۔ رات جیسی خوبصورت تھی، صبح اس سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ اس کی باہوں میں ہما خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ اس نے جسے چاہا تھا اسے پا لیا۔ من چاہے شوہر کی باہوں میں قربت کے لمحات کتنے حسین ہوتے ہیں، یہ کوئی آج ہما سے پوچھتا۔ پلیز مجھے اٹھ کر فریش ہونے دیں۔ لبوں پر ہلکی سی اسمائل جس پر شرم اور حیا کی لالی جھلک کر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہائے آپ کا اتنا شرمانا، مہندی لگا کے دل دھڑکانا، پیار آ گیا رے، پیار آ گیا۔ واہ جی واہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو سونگ بھی آتے ہیں۔ شاہ زیب کے سونگ کے دو بول صبح صبح یوں گنگنانے پر ہما حیران ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا ڈاکٹر صاحب کے سونگ بھی آتے ہوں گے، کیونکہ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی سونگ بھی سنے ہوں گے۔ پتہ نہیں جی، تمہارے اس حسن نے میرے اندر کون کون سے فنکشنز آن کر دی ہیں، ابھی تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ آہستہ آہستہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں، اور مجھے خود بھی اپنے ان فنکشنز کے بارے میں ابھی معلوم ہوا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں پر اپنے لب رکھ کر مارننگ کی پوری طرح سے فریش کرنے کے موڈ میں تھا۔ پنکھڑیوں کے قید کیے ہوئے صبح صبح گلاب کے پھولوں سے شبنم کے قطرے کو اپنے اندر انڈیلتے ہوئے مسرور ہوتے ہوتے بہکتا جا رہا تھا۔ رات کو تو پوری طرح سے اس کے خوبصورت وجود کی رونائیوں کو لوٹ کر اس کے پورے وجود پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر چکا تھا۔ صبح صبح اس کا نیچرل حسن اسے پھر سے بہکا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کی مزاحمت کے باوجود اس کی سانسوں کو اس پر تنگ کر کے رکھ گیا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، رات کو لیٹ سونے پر میرب اور رومان شاہ کی صبح ٹھک ٹھک سے ہی آنکھ کھلی تھی۔ میرب سے پہلے رومان شاہ بنا چپلے پہنے 2 ہی قدموں میں دروازے تک کا سفر طے کر کے دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کے دل نے بلنک کیا تھا کہ امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیونکہ دروازہ کھٹکھٹانے والے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بہت گھبرایا ہوا ہے، ورنہ رومان شاہ کے روم کا اس طرح سے دروازہ کھٹکھٹانا کسی کی ہمت نہیں تھی۔ رومان شاہ کے پیچھے چپل پہن کر فوراً سے میرب بھی آ کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے پر زکیہ تھی، جس نے آ کر بتایا کہ امی جان کے سینے میں بہت درد اٹھ رہا ہے۔ زکیہ کے باقی الفاظ اس کے منہ کے اندر تھے کہ رومان شاہ جس حالت میں کھڑا تھا، بنا جوتے پہنے سیڑھیوں کو پھلانگتا ہوا نیچے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کے پیچھے پیچھے زکیہ اور میرب بھی تیز قدموں سے بھاگتی ہوئی آئی۔ امی جان کے کمرے میں اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تکیے پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کی زرد رنگت اس بات کی دلیل تھی کہ جو بھی تکلیف تھی وہ امی جان کے برداشت سے باہر تھی۔ ایک نظر رومان شاہ کی جانب اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں تکلیف کے تاثرات اتنے زیادہ تھا کہ رومان شاہ کا دل تڑپ گیا۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرب میرا فون لے کر آؤ، گھبراہٹ سے چلاتے ہوئے بولا۔ میرب سے پہلے زکیہ بھاگ کر رومان شاہ کا فون لینے چلی گئی۔ رومان شاہ زیب کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ اس کی ویڈنگ کا سوچ کر اس نے ارادہ ملتوی کرتے ہوئے امی جان کے ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کیا۔ جب بھی گھر میں کوئی بھی ہاسپٹل سے ریلیٹو پرابلم ہوتی تھی تو رومان شاہ ہمیشہ زیب کو ہی فون کرتا تھا۔ باقی کے معاملات سب زیب ہینڈل کرتا تھا، مگر آج اس کا ولیمہ تھا تو رومان شاہ کو اچھا نہیں لگا کہ وہ اسے ڈسٹرب کرے۔ ڈاکٹر کو فون کرنے کے بعد اپنی امی جان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے ہوئے میرب اور زکیہ کے ہمراہ لیے ہاسپٹل کی جانب گاڑی کو بڑھاتا لے کے جا رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ تیار ہو جائیں پلیز۔ مجھے بھی تیار نہیں ہونا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آفس نہیں جانا؟ نہیں، مگر کیوں؟ اپنی گود میں سر رکھے ہوئے احمر کو دیکھ کر مہک نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہارا یہ بدلا ہوا خوبصورت رویہ مجھے ایک خواب کی مانند لگ رہا ہے، اور ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ میرا خواب ٹوٹ نہ جائے، اس لیے ان خوبصورت لمحوں کو میں کام کے نظر نہیں کر سکتا۔ آفس سے چھٹی لے لی ہے۔ کرو، ہم اپنے فرسٹ ہنی مون کے لیے مری جا رہے ہیں۔
हमारी फ़िलहाल इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं तुम्हें पाकिस्तान से बाहर ले जा सकूं। बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हारे हर ख्वाब को मैं मुकम्मल करूंगा। हम अपने सेकंड हनीमून के लिए पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। अहमर जानता था कि महक को कंट्री से बाहर घूमने का बहुत शौक है। फिलहाल अहमर के हालात इतनी इजाज़त नहीं देते थे कि वो कंट्री से बाहर ले जा सके। अहमर, आज तो आपने ये बात बोल दी है, आइंदा मत बोलिएगा। आप मुझे अपनी मोहब्बत से इस घर के अंदर भी घुमाएंगे तो मेरे लिए जन्नत होगा। जब आपने महक की हर खूबी और खामी समेत कबूल किया है तो महक बहुत पीछे रह गई, जो पैसे पर मरती थी। मेरी खुशकिस्मती यही है कि मुझे आप जैसा प्यार करने वाला शोहर मिला, जिसके मैं बिल्कुल काबिल नहीं थी। हमारी हैसियत के मुताबिक जहाँ भी मुझे ले चलेंगे, मेरे लिए जहान दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होगी, जहाँ पर आप मेरे साथ होंगे। गोद में लेटे हुए अहमर के चेहरे को दोनों जानिब हाथों रखते हुए बड़ी मोहब्बत से देखते हुए बोली, महक, हमेशा यूं ही रहना, कभी बदलना नहीं। गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोल उठा था, कभी नहीं बदलूंगी, आप भी कभी मत बदलिएगा। महक एक अच्छी लड़की है, ये तो सिर्फ मुझे आपकी नज़रों में देखकर पता चला। ये तो मैं खुद भी नहीं जानती थी। जब भी आपकी नज़रों से गिरूंगी तो मर जाऊंगी। प्लीज़ आप भी कभी बदलिएगा मत। अहमद ने अभी कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि उसके फोन पर बजती हुई बेल उसने अपनी तरफ मुतवज्जह किया। महक ने हाथ बढ़ाकर अहमद का फोन उठाकर उस हाथ में थमा दिया, जिस पर रोमान शाह की कॉल आ रही थी। किसी की सच्ची मोहब्बत अगर आपके दिल के जख्म पर मरहम लगा दे तो सच में इंसान जितने भी पुराने गहरे जख्म हो भर जाते हैं। ये बात आज महक को देखकर कही जा सकती थी, क्योंकि आज पहली बार रोमान शाह का नंबर देखकर उसके दिल ने कुछ भी महसूस नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम रोमान शाह, कैसे सुबह सुबह अपने यार की याद आ गई? क्या बात है, आज भाभी से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? उसकी ये टांग खींचने वाली आदत जो उनकी दोस्ती को खूबसूरत बनाती थी, जब भी एक दूसरे को फोन करते थे खुद ब खुद ही मुस्कुराते और तंजिया जुबान इस्तेमाल करता था। तुम परेशान नहीं हो रोमान शाह, मैं अभी महक को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। अमर रोमान शाह की पूरी बात करते हुए महक को गोद से उठकर बेहद परेशानी के तासरात से बोल रहा था। महक जो घबराहट से अहमर की जानिब देख रही थी। ओके ओके, मैं समझ गया, मैं 10 मिनट के अंदर अंदर तक पहुंच जाऊंगा, तुम परेशान मत हो यार। अहमर, क्या हुआ है? फोन बंद करते हुए उसने की जानिब घबरा कर देखते हुए महक ने सवाल किया। अम्मी जान की तबीयत बहुत खराब है। मीरा भाभी और रोमान शाह अम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, फौरन जाना होगा हमें, तुम चेंज कर लो। अल्लाह जी खैर करना। महक घबरा कर बेड से खड़ी हुई अपने कबर्ड से चेंज करने के लिए कपड़े निकालने लगी। हाय माही, कैसी हो? शिफा रूम में दाखिल होते ही माही को मसरूफ़ बैठे हुए देखकर उसके पास आ बैठी थी। माही पढ़ने में इतनी मसरूफ़ थी कि उसे रूम में शिफा के दाखिल होने का पता ही न चला। हाय शिफा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी? तुम तो अपने भाई के वेडिंग में इस कदर मसरूफ़ थी कि मोहतरमा ने मेरा फ़ोन तक नहीं उठाया। शिफा को देखकर माही जल्दी से अपने बुक्स को क्लोज करते हुए खड़ी हुई। माही और शिफा दोनों बहुत अच्छी दोस्तें थीं। शिफा के भाई की शादी की वजह से एक दूसरे से काफी दिनों बाद मिली थी। यार, फोन उठाने का तो टाइम ही नहीं मिलता, घर में इतने सारे मेहमान आए हुए थे। भी मैं फोन की तरफ जाती तो मामा कहती कि शिफा, अगर ये 4 दिन फोन से मोहब्बत कम करोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा उन बचकाना हरकतों की वजह से तुम्हारे रिश्ते कम आते हैं। एक ही सांस माही के गले में बाहें डालकर मिलती हुई शिफा ने सारी दास्तानें शादी की सुना दी। वैसे आंटी गलत तो नहीं कह रही थी, हरकतें तो तुम्हारी बच्चों से भी गई गुजरी हैं। शिफा की बात पर माही खी करती हुई हंसने लगी। शट अप बदतमीज, तुम तो मेरी दोस्त हो, बकवास कर रही। दोनों हंसते हुए ठास से बेड से गिरी थी। हॉस्टल के एक ही रूम को शेयर करती थी दोनों। यार, हमारे मैथ के नए लेक्चरर क्या बना, कोई नया नमूना आया है या नहीं? आ गया है यार, नमूना नहीं है, बड़ा ही हैंडसम है, बिल्कुल सर कहने को दिल ही नहीं चाहता। शिफा की इन्फॉर्मेशन पूछने पर माही ने बड़ी दिलचस्पी से बताया। शिफा के जाने से पहले ही मैथ का टीचर जा चुका था। शिफा उसके बारे में पूछ रही थी कि कोई नया टीचर आया है या नहीं। हाय अल्लाह, फिर तो देखना पड़ेगा। अगर माही बेगम तुम उस सर के इतनी तारीफ कर रही हो तो बंदे में कुछ बात तो जरूर होगी। माही के नाक पर कम ही लड़के चढ़ते थे, इसलिए उसकी तारीफ पर शफा को मैथ के टीचर को देखने का जुनून सा तारी होने लगा। हाँ, जरूर मिलवाएंगे, सुबह का लेक्चर होगा तो तुम बहुत ही खास अंदाज से शिफा मैडम को हम अपने मैथ के प्रोफेसर से मिलवाएंगे। सीने पे हाथ रखकर बड़े अदा से माही बोली थी। जी जी जरूर मिलवाना, तुम्हारे मामू का बेटा है ना। माही के अंदाज पर शिफा की हंसी निकल गई। दोनों रूम में खी करके हंसते हुए लोटपोट हो रही थी। खट खट खट, बेवक्त दरवाजा खटने पर मरहा हैरानी से दरवाजे की जानिब देखा। तकरीबन दिन के 12 बज रहे थे। मरहा के पास बैठी हुई गांव की औरतें जो रोज ही मरहा के पास आ जाती थी, जिनसे बातें करते हुए मरहा का पूरा दिन गुजर जाता था।
कोई भी मसरूफियत न होने की वजह से मरहा को ये औरतें भी गनीमत लगती थी, वरना तो वो अकेली बैठ बैठ कर और भी ज्यादा बोर हो जाती। अचानक दरवाजे पर खटखट होने से एक औरत ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने शामिर को देखकर सभी एकदम हैरान हो गए, क्योंकि ये शामिर के आने का वक्त नहीं था और मरहा तो कुछ ज्यादा ही हैरान थी। औरतें सलाम करती हुई जा चुकी थी। मीर खैरियत तो है, बहुत परेशान लग रहे हैं। मरहा शमीर के पास चलती हुई आई। मीर के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। मरहा, अम्मी जान की तबीयत ठीक नहीं है, रोमान का फोन आया था, तुम तैयारी करो, हम लोग रात की फ्लाइट से कराची निकलेंगे। क्या हुआ है अम्मी जान को? क्या अम्मी जान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? मरहा ने घबराते हुए पूछा। शामिर का यूं अचानक जाने की तैयारी करना उस बात का सबूत था कि मरहा की अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मरहा रोने लगी। मेरी जान परेशान ना हो, इंशाल्लाह अम्मी जान ठीक हो जाएंगी। मरहा को अपने गले लगाते हुए शामिर दिलासा दे रहा था। मीर, कल तो अम्मी जान से मेरी बात हुई है, मुझे अम्मी जान ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि जैसे वो बहुत बीमार हैं। मैंने उनसे कितनी बार पूछा, मगर अम्मी जान ने बिल्कुल ठीक होने की बात की थी। तुम तैयारी करो, मैं टिकट अरेंज करवाता हूँ, बस दुआ करो, रोना मत। उसके आंसू साफ करते हुए मीर फोन पर टिकट के बारे में अपने कांस्टेबल से बात करने लगा, जबकि मरहा जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगी। बीबी जी, बिया बेटी को बाहर चौधरी साहब लेने आए हैं, नौकरानी आकर खबर दी तो उनसे कहें अंदर आ जाए। अंदर कौन सा कर्फ्यू लगा हुआ है? बिया ने खुरम के आने की खबर सुनकर मुंह बसोरते हुए कहा। बिया बेटे, जब तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि वो अंदर नहीं आएगा, फिर क्यों बेटा हर बात पर बढ़ा चढ़ाती हो? चलो मेरी धी तैयारी करो, अगर वो तुम्हें नहीं आने देगा तो फिर तुम क्या करोगी? बिया के मामू बिया को समझाते हुए जाने का कह रहे थे। बिया के ननियाल वालों के साथ खुरम की बनती नहीं थी, इसलिए वो घर के अंदर नहीं आता था, हमेशा से बाहर से बिया को ले जाता था, जबकि बिया को यही आदत बहुत बुरी लगती थी उसकी। जल्दी आ जाया करो, तेरा ड्राइवर नहीं हूँ। बिया कांधों पर चादर डालते हुए दुपट्टा का हिजाब करके गाड़ी का गेट खोल रही थी कि आते ही खुरम के जुमले से बिया का मूड खराब हो गया। वो आगे का दरवाजा बंद करके पीछे का दरवाजा खोल के अंदर बैठने लगी। आगे आकर बैठ, आती है मेरा दिमाग खराब किया है। तेरा ड्राइवर नहीं हूँ जो तू मेम साहब बन के पीछे बैठेगी और मैं आगे बैठकर तेरी ड्राइवरी करता रहूंगा। कहर बरसाती हुई नजरों से देखकर बोला तो हमेशा की तरह बिया पर उसकी बात मानना लाजिम थी। पीछे दरवाजे को ठिका कर बंद करते हुए वापस अगला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। दरवाजा उसने इस तरह से बंद किया था जैसे वो खुरम के मुंह पर मारा हो। कभी तमीज से आकर सलाम भी बोल दिया कर, मुंह बिगाड़ कर बैठती हो। बिया की जानिब गुस्से से देखते हुए खुरम ने गाड़ी स्टार्ट की। साईं आते ही जहर उगलने लगते हैं, सलाम लेने का मौका कहाँ देते हैं। हाँ, मैं तो तेरी जुबान पकड़ लेता हूँ ना, जो सलाम लेने के लिए तुझे वक्त पेश आता है। साईं मुझसे झगड़ा करने के अलावा कुछ और कर सकते हैं। बिया को पता था वो जितनी जवाब देगी खुरम उतना ज्यादा बिगड़ कर उसने लड़ाई पर तैयार होकर हाथ डालने लगेगा। अगर तुम्हारी मोटी अकल में मेरी बात आ जाए तो लड़ाई की नौबत ही ना आए। जब तुझे पता है कि मुझे तुम्हारा इस घर आना पसंद नहीं हो तो क्यों मेरा दिमाग खराब करती हो? ये जो तुम अब्बा साईं की सपोर्ट लेकर मन मर्जियां करती हो ना, एक दिन पछताओगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता साईं, आपको मेरे ननियाल वालों से क्या मसला है? इतनी तो वो आपकी इज्जत करते हैं। उनकी इज्जत गई तेल लेने। तेरे मामों के पुत्रों ने जो साथ वाले गांव के चौधरी के साथ मिलकर घोड़े की रेस में मेरे साथ शर्त लगाई और धोखेबाजी से वो शर्त जीत लिया, मैं वो कभी नहीं भूलूंगा और ना ही उनको भूलने दूंगा। साईं, वो इतनी पुरानी बात है, आप छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता। तू उनकी हमदर्दी में अपनी जुबान को मत खोला कर। किसी दिन बिया मैं तेरी जान ले लूंगा। साईं, मैं उनकी हमदर्दी में नहीं बोल रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि माफ़ कर देने वाला रब को बहुत पसंद है, तो छोड़ें उस बात को, माफ़ कर दें मेरे भाइयों को। तेरे इन भाइयों को तो मैं कभी माफ़ नहीं करने वाला। खुरम पहल करता नहीं है, बाद में किसी को छोड़ता नहीं है। मेरी इस आदत से तुम अच्छी तरीके से वाकिफ हो। अब पहल उनकी तरफ से हुई है तो आखिरी बार मेरी तरफ से होगा। बिया को पता था खुरम को समझाने का मतलब है पत्थर की दीवार से अपना सर फोड़ना, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती थी। वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी, जो उम्र में सब उससे बड़े थे। कहने को तो वो सब उसके मामू के बेटे थे, मगर बिया उन सब से ऐसे ही प्यार करती थी जैसे बिल्कुल सगे भाई हों। उनकी कोई बहन नहीं थी, वो भी बिया को सगी बहनों की तरह पलकों पे बिठा के रखते थे। 7 साल पहले साथ वाले गांव में हुई एक रेस में जिसकी उसके भाइयों ने शरारत से शर्त लगाते हुए धोखा करके उस रेस को जीत लिया था, जिसको खुरम ने आज तक अपनी अना का मसला बनाया हुआ था। उन्होंने खुरम को भंग के नशे में धुत कर दिया, जिसकी वजह से खुरम रेस नहीं जीत सका। खुरम एक बहुत अच्छा
हॉर्स राइडर था जो घोड़े की पीठ पर बैठकर अपनी मर्जी से सवारी करना जानता था। घोड़े के पीठ पर बैठकर घोड़े को उस तेज रफ्तारी से उड़ाता कि आज तक जितने भी आसपास के गांव में घोड़ों की रेस होती थी हमेशा अव्वल पोजीशन खुरम ही लेता था। उस दिन भंग के नशे में वो खुद पर काबू न रखते हुए घोड़े की पीठ से नीचे गिरा था और वो रेस जीत न सका। बस वो हार खुरम ने अपनी अना पर ली हुई थी। आज तक उसके भाइयों को माफ नहीं किया था। वो कभी उनके घर नहीं जाता था, इसलिए उसे बिया का भी जाना पसंद न था। कई बार बिया के भाइयों ने सुलह सफाई करने की कोशिश की, मगर खुरम ने हमेशा हठ धर्मी से अपने कदम पीछे हटा लिए। इसलिए ये लड़ाई आज भी उस दरमियान खुरम की जानिब से चल रही थी, जबकि बिया के भाई ऐसा नहीं चाहते थे। डॉक्टर, एवरीथिंग इज ओके, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? डॉक्टर को बाहर आते देखकर रोमान शाह डॉक्टर के पास जाकर जल्दी से बोला। रोमान शाह, खतरे की बात है, आपकी अम्मी जान को दिल का अटैक आया है। अटैक पहला नहीं है, इससे पहले भी छोटे अटैक आ चुके हैं। पहले अटैक ने काफी नुकसान किया, जिसकी वजह से इस अटैक से केस बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। डॉक्टर, नो प्लीज, कुछ भी करो, अम्मी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अम्मी जान को इलाज के लिए दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकता हूँ, मगर मेरी अम्मी जान को कुछ नहीं होना चाहिए। रोमान शाह के लहजे में इस कदर तड़प थी कि पास खड़े हुए सभी लोगों के दिल रो पड़े। रोमान यार, हौसला रख, हमारे दोस्त हो। हमारा रिश्ता सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट वाला नहीं है यार। तुम्हारी माँ हमारी भी माँ है, मगर तुम जानते हो अम्मी जान पहले भी काफी सारी बीमारियों में घिरी हुई हैं। मगर ये तुम्हारा उनका रूटीन से इलाज करवाना, जिसकी वजह से अम्मी जान की सेहत बरकरार रही है। मगर यार, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। इस वक्त मैं तुम्हें कोई दिलासा नहीं देना चाहता। तुम्हारी अम्मी जान की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। डॉक्टर सिकंदर रोमान शाह के कांधे पर हाथ रखते हुए उस हकीकत से आगाह कर रहा था, मगर हम फिर भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और रोमान शाह को यूं टूटे हुए देखकर डॉक्टर सिकंदर का कांधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया था। पास खड़े हुए अहमद ने रोमान शाह को यूं टूटे हुए देखकर मजबूती से उसके कांधे पर हाथ रखा, जैसे उसे सब्र करने को कह रहा हो। रोमान शाह अपनी माँ के लिए मोहब्बत उसके दोस्तों की आंखों से छुपी न थी। हर बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, मगर रोमान शाह के लिए उसकी माँ की मोहब्बत कुछ अलग ही मकाम रखती थी। अहमद के पास अल्फाज नहीं थे रोमान शाह को दिलासा देने के लिए। रोमान, मैं चाहता हूँ कि तुम शाहजेब को इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि शाहजेब हार्ट का बेहतरीन सर्जन है। डॉक्टर सिकंदर ने रोमान शाह को मशवरा दिया। रोमान शाह ने हाँ में सर को हिलाया। रोमान शाह के जुबान से उस वक्त अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। आज रोमान शाह की सच में वही फीलिंग थी। माँ बाप की ए रब, जिंदगी में बहुत ज़रूरत है, उनकी मौत की वादियों में छुपाना मत। एक इल्तिजा है मेरी, ए खुदा, माँ किसी की आगोश में ले जाना मत। पहाड़ की तरह हर मुश्किल से लड़ जाने वाला रोमान शाह आज किस कदर टूटा हुआ लग रहा था। शाह प्लीज, आप परेशान न हो, इंशाल्लाह अम्मी जान ठीक हो जाएंगी। हम उनके अपने साथ यूं ही हंसता मुस्कुराता ले जाएंगे। रोमान शाह के जर्द चेहरे को देखकर मीरब अपने शाह का हाथ पकड़कर उसे दिलासा दे रही थी, जबकि डॉक्टर की बातें वो भी सुन चुकी थी। आज से पहले रोमान शाह को यूं टूटा हुआ मीरब ने कभी नहीं देखा था। रोमान शाह की लाल आंखें और जर्द चेहरा उसके अंदर की वीरानी दिखा रहे थे। शाह सब वो वीरान आंखों से देख रहा था, मगर उसके पास कहने के लिए अल्फाज न थे। अमर, मैं 10 मिनट के अंदर पहुंच रहा हूँ। यार, हद है, तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। शाहजेब वलीमे के फंक्शन में अहमर और रोमान शाह का इंतजार कर रहा था। वलीमे का आधा फंक्शन गुजरने के बाद जब भी वो दोनों ना आए थे तो उसने खुद ही अहमर का नंबर मिलाया, क्योंकि रोमान शाह फोन नहीं उठा रहा था। अम्मी जान की तबीयत इस कदर खराब होना शाहजेब से फिक्रमंदी से बोल रहा था। अपने वलीमे के फंक्शन को बीच में छोड़कर वो हॉस्पिटल के लिए निकल आया था। उसके लिए वक्त अपने यार की माँ की सेहत से ज़्यादा ज़रूरी न था। वैसे भी डॉक्टर शाहजेब अपने पेशेंट को लेकर हमेशा सीरियस रहता था, मगर उस वक्त तो बात उसके यार की माँ की थी और उसकी माँ उसके लिए किस कदर अहमियत की हामिल थी, ये बात शाहजेब भी अच्छे तरीके से जानता था। बाप के गुजर जाने के बाद रोमान शाह की पूरी दुनिया अपनी अम्मी जान के इर्द गिर्द घूमती थी। वलीमे के फंक्शन को बीच में ही क्लोज करते हुए वो अपने मेहमानों से इजाज़त लेता हुआ हॉस्पिटल के लिए निकला। हुमा भी एक डॉक्टर थी जो अपने पेशे से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी और उस वक्त वो बात भाइयों जैसे रोमान शाह की थी, तो इसलिए उसने भी साथ जाने को ही तरजीह दी।
वो दोनों एक साथ घर पहुंचकर घर से सिर्फ उन्होंने 5 मिनट के अंदर कपड़े चेंज किए और हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। शामिर और मरहा भी अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचे। सब जगह रोमान शाह के साइन लिए जा चुके थे। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। जब रोमान शाह की मां ने रोमान शाह, मीरब और शामिर, मरहा, अहमद सबको अपने पास बुलाया था। मरहा जो रोमान के गले से लगी हुई रो रही थी, अपने अम्मी जान को यूं अचानक बुलाने पर फटी फटी नजरों से भाई की जानिब देखने लगी। मरहा अपने कुछ देर पहले ही अपनी अम्मी जान से मिलकर आई थी और ऑपरेशन की जल्दी की वजह से डॉक्टर ने उनको बाहर भेज दिया था और फिर यूं अचानक बुलाने पर सब घबरा गए थे। सब घबराए हुए चेहरों के साथ एक साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर दाखिल हुए। शाहजेब जो पहले ही अंदर मौजूद था, शाहजेब सब ठीक है? रोमान शाह ने अंदर आते ही शाहजेब से सवाल किया, जो उस वक्त ऑपरेशन वाले यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा था। रोमान शाह की अम्मी जान का ऑपरेशन था, शाहजेब की टीम ही हैंडल कर रही थी। यार, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है। अम्मी जान एक बार सबसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सका। शाहजेब रोमान शाह के पास आकर सरगोशी करते हुए अंदाज में कह गया। शाहजेब प्लीज़ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल मत करो, मेरा दिल फट जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों में हमेशा मुझे तसल्ली में देती हैं और आज मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही। शाहजेब की बात पर रोमान शाह ने तड़प कर कहा, मेरे यार, मैं तुम्हारी तकलीफ को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, मगर मैं हकीकत तुमसे कैसे छुपाऊँ? हकीकत यही है कि ऑपरेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जहाँ पर अम्मी जान की ज़िंदगी के चांसेस बहुत कम हैं। ये एक रिस्की ऑपरेशन है। ये कहते हुए शाहजेब की नम आंखें हो गई थी। वो नहीं बोलना चाहता था इस तरह के लफ्ज़, मगर क्या करता, एक डॉक्टर होने के नाते उसे रोमान शाह को हकीकत से आगाह करना ज़रूरी था। रोमान मेरी जान, इधर आओ। रोमान शाह को कम आवाज में शाहजेब से बात करते हुए रोमान शाह की माँ उसके चेहरे के जावियों को देखकर समझ रही थी कि रोमान शाह इस वक्त किस कदर टूटा हुआ है। मरहा को अपने सीने से लगाए हुए ऑपरेशन के कपड़े पहने हुए लेटी हुई थी। मरहा झुककर अपनी माँ के सीने से लग गई। रोमान शाह अपने चेहरे के बहुत नॉर्मल दिखाते हुए कोशिश करते हुए हल्के लबों से मुस्कुराता हुआ अपनी अम्मी जान के पास आकर बैठ गया। अपनी माँ का झुर्रियों से भरा हुआ हाथ उठाकर चूमकर अपनी आंखों को लगाते हुए रोमान शाह ने अपनी आंखों से आते आंसुओं को नहीं रोक सका। ये वो हाथ थे जिन्होंने बहुत मुशक्कत की थी रोमियो की माँ ने, जो उसने रोमियो को रोमान शाह की मंजिल तक पहुंचाने में उसकी बहुत मदद की थी, जिन्होंने अपनी जवानी रोमान शाह और मरहा पर कुर्बान कर दी। आज उन हाथों का साया उठते सोचकर भी रोमान शाह पल पल मर रहा था। रोमान, माँ बाप हमेशा सर पर सलामत नहीं रहते बेटा, तू तो मेरा बहादुर बेटा है। रोमान शाह को अपने हाथ पर झुके हुए रोते देखकर दूसरे हाथ से रोमान शाह के सर पर हाथ रखते हुए बहुत कम आवाज से बोल रही थी, अम्मी जान प्लीज इस तरह मत बोलें, आप ठीक हो जाएंगी। अगर खुदा बीमारी देता है तो वो शिफा देने पे भी कादिर है। रोमान शाह की माँ ने हाँ में सर को हिलाते हुए उसकी जानिब गौर से देखा था। वो अपनी हालत से बखूबी वाकिफ थी। उनको पता था ये आखिरी वक्त है, जाने का वक्त आ चुका है। मुझे पता है बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मेरी चंद बातें गौर से सुनो। शामिर को आंख का इशारा करते हुए अपनी जानिब बुलाया। बेटा, तुम दोनों ही माँ बाप के इकलौते बेटे हो। मेरे लिए रोमान और तुम में कोई फर्क नहीं है। तुम्हें मैंने अपने जिगर का टुकड़ा दिया है। तुम मुझे रोमान की तरह ही अजीज हो। मेरे चले जाने के बाद दोनों भाई बनकर रहना और वादा करो तुम दोनों एक दूसरे के हर मुश्किल में ढाल बनकर रहोगे। दोनों के हाथों को एक दूसरे के हाथ पर रखते हुए तसल्ली नजरों से देख रही थी। अम्मी जान प्लीज, आप क्या बोल रही हैं? रोमान और शामिर एक साथ बोले। मौत से डरना नहीं चाहिए, खुदा से नेक मौत मांगनी चाहिए। बरहक चीज है, सबको एक दिन आती है। मौत का मज़ा हर जानदार चीज़ को चखना है। तुम लोग मुझे बस मेरी बातों का जवाब दो ताकि मैं तसल्ली से आंखें बंद कर सकूं। वादा करो कि एक दूसरे के साथ भाई बनकर रहोगे। अम्मी जान आपको लंबी ज़िंदगी दे, आप हमारे सर पर सलामत रहें। अगर आपको हमारे वादों से तसल्ली मिलती है तो हम वादा करते हैं हम दोनों एक जान होकर रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा लगाकर रखेंगे। शामिर ने तसल्ली देते हुए कहा। शाहजेब और अहमद को अपने पास बुला रही थी। तुम दोनों भी मेरे लिए रोमान से कम नहीं हो। तुम दोनों हमेशा रोमान के साथ भाइयों से बढ़कर रहे हो और मेरे जाने के बाद भी मेरे रोमान को अकेला मत छोड़ना। हमेशा उसके साथ रहना, कभी उसको भाइयों की कमी महसूस मत होने देना। अम्मी जान कहते हुए खुद भी रो पड़ी थी। रूम में खड़े हुए सब लोगों की आंखों में आंसू थे।
तुम दोनों हमेशा बहनों की तरह रहना। मरहा को कभी बहन की कमी महसूस मत होने देना। मरहा जब भी हमारे घर आए उसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। बेशक तुम दोनों की उम्रों में ज्यादा फर्क नहीं, मगर तुम हमेशा मेरे घर की बड़ी बहू बनकर ही जिम्मेदारी निभाना। अम्मी जान अब मीरब और मरहा को समझा रही थी। अम्मी जान आपको कुछ नहीं होगा, ऐसे मत कहें। मरहा रोते हुए अपनी माँ के सीने से लग गई। परेशान मत हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। शामिर हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखना, ये मुझे बहुत अजीज है। शामिर की जानिब देखते हुए रोक कर कहा, अम्मी जान आप परेशान ना हो, आप ठीक हो जाएंगी। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा, ये मुझे भी बहुत अजीज है। आप इस तरफ से मुतमईन रहें। शामिर के अल्फाज मरहा की अम्मी जान के लिए बहुत ही तसल्ली बख्श थे। तुम क्यों रो रही हो? इधर आओ मेरे पास। खड़ी हुई मीरब जो रो रही थी उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुला रही थी। मीरब को भी अपनी सास से बहुत लगाव था। वो भी अपने सास से बहुत प्यार करती थी। वो जब से उस घर में आई थी उन दोनों का रिश्ता कभी भी सास और बहू वाला न था। हमेशा दोनों माँ बेटी बन कर रहे थे। रोमान शाह की माँ हमेशा मीरब को बेटी वाली मोहब्बत देती थी और वो आज मीरब बेटी की तरह तड़प कर रो रही थी। मजबूत बनना है, अगर तुम मजबूत बनोगी तो ही मेरे इस टूटे हुए बेटे को संभालोगी। नम आंखों से उसके साथ खड़ी हुई रोमान शाह की जानिब इशारा करते हुए बोली, तुम्हें मजबूत होना है मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए। मैंने तुम्हें कभी बहू नहीं समझा। तुम मुझे मरहा की तरह अजीज हो। मेरा भी दिल नहीं चाहता कि मैं अपने इतने प्यारे बच्चों को छोड़कर जाऊं, मगर जब रब का बुलावा आता है ना तो बंदे के हाथ में कुछ नहीं होता। ये मेरे रब की रजा है और मैं जानती हूँ मेरे पास वक्त नहीं। रोमान शाह की माँ पूरी तरह से इस बात को तस्लीम कर चुकी थी। अब वो दुनिया में नहीं रहने वाली, इसलिए अपने बच्चों को हर तरह से तायद करके एक दूसरे के साथ जुड़े रहने को कह रही थी। अम्मी जान ऐसा मत बोले, मैं मजबूत नहीं हूँ। वो रोते हुए बोली, मैं आपके रोमान को नहीं संभाल सकती। रोमान आपके सिवा कुछ नहीं है, वो नहीं जी सकते आपके बिना। अम्मी जान हमारे घर की रौनक हैं आप। बेटियों की तरह तड़प कर अपनी सास के सीने से लगी हुई वो रो रही थी। मेरी जान मुझे तो अभी अपने रोमान के बच्चे देखने थे, उनको अपनी गोद में खिलाना था, उनकी किलकारियां सुननी थी, उनके नन्हे हाथों को चूमना था। मगर अल्लाह का बुलावा आ जाए तो बंदे को उस रब के आगे कोई ख्वाहिश नहीं जलती। मेरे रब की जो रजा है उसकी रजा पे राजी हूँ। अम्मी जान प्लीज मत कहें, मेरा दिल फट जाएगा। पहली बार रोमान शाह की आवाज के साथ रो रहा था। इतनी मजबूत रोमान शाह को ऐसे बच्चों की तरह रोते हुए देखकर रूम में खड़ी हुई औरतें तो क्या, मर्दों की आंखों से भी आंसू निकल गए। आपको कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। शाहजेब तुम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर बुलाओ, अम्मी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। कुछ नहीं होना चाहिए मेरी अम्मी जान को। रोमान शाह अपनी माँ के सीने पर गिरकर छोटे बच्चों की तरह अपनी माँ के चेहरे और माथे को चूमकर उनके हाथ को अपने आंखों से लगाते हुए जोरों कतार रो रहा था। आज रोमान शाह के अंदर का बच्चा, मासूम बच्चा, अपनी माँ को जाता हुआ देखकर तड़प रहा था। बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, मर्जी से बड़ा हो जाए, मगर माँ माँ ही होती है और माँ के लिए अपना बच्चा हमेशा छोटा ही रहता है। जैसे आज रोमान शाह और मरहा को देखकर अम्मी जान को यही लग रहा था वो आज भी छोटे ही हैं, वो खुद को नहीं संभाल सकेंगे। इसलिए तो उनके इर्द गिर्द खड़े हुए करीबी रिश्तेदारों को उनको और भी करीब होने का कह रही थी। चची जान प्लीज़ मेरी गलतियों को, मेरी नादानियों को नादानियाँ समझकर माफ़ कर दें। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे, आप हमारे सर पर सलामत रहे। महक बेटा अल्लाह ताला तुम्हें अपने घर में खुश रखे। मैंने तो तुम्हें उस दिन माफ़ कर दिया था जब तुम उस घर से रुखसत होकर गई थी। बेटियों से कैसे नाराज़गी। बस बेटा अपने आने वाली ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ दोबारा मत करना। अल्लाह ने तुम्हें अहमर जैसा प्यारा शोहर दिया है जो बहुत ही नेक है, उसकी कदर करना। मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके सर पर प्यार देते हुए बोली। महक रो रही थी। वो सोच रही थी कि उसने ऐसी गलतियां की जो नाकाबिले तलाफी थी, मगर उन्होंने कितनी आसानी से उसे माफ़ कर दिया। इतनी नेकदिल औरत थी। रोमान बेटा इनको इनका घर वापस कर देना। अपने जेठ और जेठानियों की तरफ इशारा करते हुए बोली। जान आप ठीक हो जाएं, आपका हुक्म। रोमान शाह के सर आंखों पर, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूँगा। भाभी जान आप ठीक हो जाएं, आप क्यों सब ऐसे बोल रही हैं? हम इस काबिल नहीं हैं। आपको अब भी हमारी फिक्र है। ताला आपको सेहत दे। रोमान के तायरम से जिंदगी से नजरें झुकाए उस एक नेक औरत के बारे में सोच रहे थे जिसको उसने अपने भाई के मरने के बाद घर से बेघर कर दिया। आज वो जाते जाते हुए उनको छत देकर जा रही थी।
اندر کھڑے ہوئے ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ رومان کی امی کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ شاہزیب نے فوراً سب کو آپریشن تھیٹر سے باہر جانے کو کہا۔ امی جان کے آنسو سے نم آنکھیں اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ آخری بار ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں پر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو محبت بھرا بوسہ دیا۔ ان کو نہیں پتا تھا زندگی ان کو جینے کے لیے کچھ پل دے گی، یہ یہاں پر اختتام ہو جائے گا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آنے والا وقت کیا لے کر آئے گا، خوشی یا غم۔ حالات کا تقاضا تو یہی نظر آ رہا تھا کہ آنے والا وقت بہت سارے غموں کے اندھیروں سے رومان شاہ کی زندگی میں لے کر آ رہا ہے۔ رومان شاہ کی زندگی سے وہ ہستی شاید کہیں دور جا رہی ہے، اس خوبصورت پیار سے شفقت بھرے چہرے کا دیدار کر کے جسے وہ روز دیکھ کر حج کا ثواب حاصل کر لیتا تھا۔ اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر رومان صبح ہوتے ہی اس دنیا کی ہر خوشی مل جاتی تھی۔ گھر میں ماں کے ہونے سے جو رونق تھی وہ رونق کہیں چھوٹ نہ جائے۔ رومان شاہ تڑپ رہا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی طرح کرسی پر بیٹھ کر چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے زاروں قطار رو رہا تھا۔ گھر جا کر منہ کھلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پورے راستے جھگڑ کرنے کے بعد بیا کو اب گاڑی سے غصے سے اترتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھ کر خرم نے دھمکی دی تھی۔ بیا نے پیچھے کی جانب سے اسے دیکھتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ لڑائی بھی کرتے ہیں اور کسی کو بتانے سے بھی ڈرتے ہیں، وہ جاتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ بیا کسی دن قسم سے تیرے اس بڑبڑاہٹ سے میں بہت اچھا علاج کروں گا۔ خرم بیا کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ خرم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ چودھری صاحب سامنے ہی برآمدے میں موڑے پر بیٹھے ہوئے اپنے دیسی اسٹائل میں حقے کے کش مار رہے تھے، ساتھ میں اپنا فیورٹ کام اخبار پڑھنے میں مشغول تھے۔ خرم کی اماں ماہنور کے سر پر تیل لگاتے ہوئے گھر کی ملازمہ کے ساتھ کسی بات پر ناراض ہو رہی تھی۔ ماہنور اپنے اماں سائیں کے آگے بیٹھتے ہوئے سر میں تیل کا مساج کرواتے ہوئے ساتھ میں موبائل پر کوئی ٹی وی شو دیکھ کر کھلی کھلی ہنس رہی تھی۔ السلام علیکم تایا ابا۔ السلام علیکم تائی امی۔ خرم کی ناراض کو ہوا میں اڑاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بیا نے شیرنی بن گئی تھی۔ اسے پتا تھا اب خرم کچھ نہیں بولے گا۔ وعلیکم السلام، آ گئی ہماری دھی رانی۔ چودھری نے خوشی سے باہیں پھیلاتے ہوئے اپنی ہونے والی بہو کا استقبال کیا، جس کو وہ اپنی بیٹی سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ تائی اماں کو گلے ملنے کے بعد ماہنور کے گلے لگی اور زور سے ملی۔ دونوں پتہ نہیں کتنے سالوں سے بچھڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ بیا بھاگتی ہوئی جا کر اپنی تایا کے سینے سے جا لگی، جو اسے ہمیشہ ایک باغ کی طرح ہی شفقت سے ملتا تھا۔ تایا ابو کے ہوتے ہوئے بیا کو کبھی بھی اپنے ابو کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیا کو لے کر ہر بات پر خرم تک سے اڑ جاتا تھا۔ آ گئی یاد اپنی بیٹی کو تایا ابو کی۔ تم اتنے دن کے لیے گھر سے غائب مت ہوا کرو، گھر میں رونق نہیں ہوتی اور تمہاری تائی اور میرا دل بھی نہیں لگتا۔ تایا ابو مجھے کوئی لینے آتا تو میں اس کے ساتھ آتی نا۔ اشارہ خرم کی جانب تھا۔ ایک نظر اٹھا کر اس نے صوفے پر مصروف بیٹھے موبائل میں خرم کی جانب دیکھا۔ خرم نے دانتوں کو پیستے ہوئے بیا کی جانب دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی ذرا سی بات پر ابا سائیں کو ہوا دی جائے گی اور پھر وہ بنا منہ کے ماحول دیکھ کر شروع ہو جائیں گے۔ بیا کی بچی، تجھے سمجھا کر لایا تھا کہ کچھ مت کہنا، اس بار تو تمہیں میں سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ وہ دانتوں کو پیستے ہوئے دل میں سوچ رہا تھا، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ آ جاتی، اس کھوتے کے انتظار میں کیوں بیٹھی تھی؟ ان کی امید کے مطابق ابا سائیں نے اپنے فیورٹ نام سے خرم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امی جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرب اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کے پاس کھڑی ہوئی، جو کب سے اپنے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں چھپا کر کرسی پر بیٹھا ہوا بچوں کی طرح روئے جا رہا تھا۔ آپریشن کافی کرٹیکل تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے آپریشن جاری تھا۔ یہ وقت بہت طویل لگ رہا تھا۔ سیکنڈ منٹوں میں، منٹ گھنٹوں میں لگ رہے تھے۔ کسی کے پاس ایک دوسرے کو بولنے کے لیے الفاظ نہ تھے۔ سب بے رحم وقت کے رحم کو چھوڑ کر کھڑے تھے۔ آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹرز باہر آنے لگے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی یہ پوچھنے کی کہ کیا ہوا۔ شاہزیب نے رومان شاہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ رومان شاہ بچوں کی طرح روتے ہوئے شاہزیب کی جانب دیکھ کر نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا، جیسے یہ کہنا چاہتا ہو، پلیز شاہزیب، کوئی بری خبر مت سنانا۔ آئی ایم سوری، شاہزیب نے یہ لفظ بہت مشکل سے کہے تھے۔ نہیں نہیں، ایسا مت بولو، امی جان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ شاہزیب کو گریبان سے پکڑتے ہوئے رومان شاہ ایک چھوٹے بچے کی مانند رو رہا تھا۔ اس وقت اسے نہ تو یہ پتا تھا کہ وہ رومان شاہ ہے، اس شہر کا بزنس مین جس کی پرسنالٹی ہے، نہ اسے یہ پتا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں کھڑا ہے۔ بس اس کے اندر کا بچہ تھا جو دھاڑے مار کر رو رہا تھا اپنی ماں کے جانے کی بات سن کر۔
شاہزیب نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے صبر کرنے کو کہا، مگر اس وقت رومان شاہ کو کوئی چیز صبر نہیں دلا سکتی تھی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، سانسیں رکنے لگی تھی۔ آج ساری دنیا رومان شاہ کو بے معنی لگ رہی تھی۔ اس کی جنت اس سے دور جا رہی تھی۔ ساری دنیا پہ تاریکی چھائی ہوئی، اسے اپنا وجود بے مقصد لگنے لگا۔ وہ نہیں خود کو سنبھال پا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بہت کمزور دکھتی ہے، جو وہیں کھڑی ہوئی لہراتے ہوئے بے ہوش ہو کر فرش پر گرنے لگی تھی۔ کھڑی ہوئی میرب نے سہارا دے کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ شامیر مرحا کو دیکھ کر اور بھی ٹینشن میں آ گیا۔ اس وقت ان دونوں بہن بھائیوں کی جو حالت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ رومان شاہ احمر اور شاہزیب کو پیچھے دھکیلتا ہوا بھاگ کر آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہوا، جہاں پر اس پر نور چہرے کے اوپر سفید چادر ڈال دی گئی تھی، بلڈ اور دوسری ڈرپس اتار دی گئی تھی۔ رومان شاہ کے قدم آہستہ آہستہ بیڈ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ چند قدموں کا فاصلہ رومان شاہ طے نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وہ اپنی تکلیف کو بھول کر کیسے اپنے بچوں کو ایک ساتھ رہنے کا کہہ رہی تھی، کیسے رومان شاہ کے ارد گرد رشتوں کا کوریج بنا رہی تھی، کیسے جاتے جاتے انہیں آخری بار اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر محبت بھرا بوسہ اپنے بچوں کو دیا تھا۔ کیوں ماں اتنی پیاری ہوتی ہے؟ کیوں ماں کو موت سے ڈر نہیں لگتا، صرف بچوں کو چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے؟ کیوں ماں کا نعم البدل دنیا میں نہیں ملتا؟ اس وقت ساری سوچیں رومان شاہ کے دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ آنسو اس کے خوبصورت چہرے کو بھگوئے جا رہے تھے، روک روک کر آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت خود کو کا سب سے بے بس انسان سمجھ رہا تھا۔ اس وقت اپنا روپیہ پیسہ دولت شہرت سب فضول لگ رہے تھے۔ کیا کرنا ہے ایسی دولت کا جو میری ماں کی زندگی نہیں بچا سکی؟ اپنے دل میں سوچتے ہوئے آخری 2 قدم بڑھاتے ہوئے بیڈ کے پاس آ گیا۔ رومان شاہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ چادر کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہلکی سی چادر کا کونا ہٹاتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی جو کبھی رومان شاہ کے آنے کو رستہ تکتی رہتی تھی۔ اب یہ چہرہ دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گا۔ وہ کبھی اسے پیارے چہرے کو دوبارہ نہیں دیکھ سکے گا۔ شفقت بھرے ہاتھ کبھی اس کے سر پر نہیں آئیں گے۔ اپنی امی جان کا ہاتھ اٹھا کر چومتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگا کر سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ جسم میں خون کی گردش نہ ہونے کی وجہ سے امی جان کا ہاتھ ٹھنڈا برف ہو گیا تھا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس کی انگلی پکڑ کر رومان شاہ نے چلنا سیکھا تھا۔ یہ وہ ہاتھ تھا جس نے رومان شاہ کی پوری زندگی دعائیں کی تھی۔ امی جان، نہیں رہ سکتا آپ کے بنا۔ کیوں جا رہی ہیں آپ مجھے چھوڑ کر؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ امی جان، آج بھی رومان شاہ بہت کمزور ہے۔ آج بھی رومان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ کی دعاؤں کے بنا رومان کا کوئی وجود نہیں۔ کیوں جا رہی ہیں آپ ہمارے گھر کو ویران کر کے؟ امی جان، اس گھر میں آپ کے ہونے سے رونق ہے۔ اب میں صبح اٹھ کر کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ امی جان، آپ کا کمرہ خالی ہوتے جا رہا ہے۔ امی جان، آپ مجھے گھر میں کہیں چلتی پھرتی نظر نہیں آئیں گی۔ رومان شاہ کے جملوں میں اتنا درد تھا۔ سب لوگ سسکیوں کے ساتھ رونے لگے تھے۔ شامیر نے آگے بڑھ کر رومان شاہ کو کھینچ کر اپنے گلے لگایا۔ آج پہلی بار بھائیوں کی طرح حق سے اسے اپنے گلے لگا کر خود بھی رو دیا تھا۔ رومان شاہ شامیر کے گلے لگ کر آج سگے بھائیوں والی فیلنگ ہی آئی تھی۔ وہ ایک کمزور بچے کی مانند سسکیاں لیتے ہوئے شامیر کے گلے لگ گیا تھا۔ شامیر، امی جان تمہارے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں۔ یار انہیں کہو نہ اٹھتا۔ وہ بچوں کی طرح اپنی ماں کو اٹھانے کی ضد کر رہا تھا۔ وہ بچہ تو تھا اپنی ماں کا۔ ہمیشہ رومان شاہ نے اپنی ماں کی نظروں میں اسے معصوم رومیو کو ہی دیکھا تھا۔ رومان شاہ تو وہ دنیا والوں کے لیے تھا، اپنی ماں کا تو آج بھی وہ معصوم رومیو تھا جو ہر پریشانی کو اپنی ماں کے ساتھ اس چہرے کو دیکھ کر بھول جایا کرتا تھا، اس کی گود میں سر رکھ کر بھول جایا کرتا تھا، مگر ماں کی نظر پھر بھی سمجھ جاتی تھی کہ اس کا بیٹا پریشان ہے۔ بن بولے سمجھنے والی ہستی آج ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو رہی تھی۔